صبح اتوار تھا، اس لیے آج میں خوب سونا چاہتی تھی۔ دن رات کی محنت نے مجھے تھکا دیا تھا۔ درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ دگنی محنت کرنی پڑتی۔ صبح سے رات وہ کام پر رہتے، جبکہ میں گھر میں کپڑے سلائی کرتی تھی۔ میرے ساس اور سسر حیات نہ تھے، صرف میری 2 نندیں تھیں، بڑی نند فائزہ اور اس سے چھوٹی فضا۔ فضا لا ابالی طبیعت کی مالک تھی، ہر وقت اپنی دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ میرے شوہر فضا پر مکمل یقین رکھتے تھے اور وہ ان کی لاڈلی بھی تھی، سو اسے یہ آزادی تھی کہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کہیں بھی آ جا سکتی تھی۔ لڑکوں کے بارے میں ہمارے گھر کے اصول نہایت سخت تھے۔ ہمیں کسی بھی غیر آدمی سے ملنے یا بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ میری نند فائزہ فضا کے مقابلے میں نہایت سنجیدہ اور کم گو لڑکی تھی۔ میری شادی کے ان 2 سالوں میں اس نے مجھ سے دوستی کرنے کے لیے کئی جتن کیے، مگر میں نے کبھی اسے لفٹ نہ کروائی۔ میں اس سے دور بھاگتی تھی تاکہ اس کا سایہ بھی مجھ پر نہ پڑے۔ میں اس کی بات کا کم ہی جواب دیا کرتی تھی۔ فضا کے ساتھ میرا رویہ بہت اچھا تھا۔ فائزہ سے اکثر میں اپنے حصے کے کام کروا لیتی تھی، لیکن پھر بھی میں اس سے دوستی نہ کر پائی۔ میں اسے کبھی کبھی باتیں بھی سنایا کرتی تھی، مگر وہ کبھی امجد کو میری شکایت نہ لگاتی۔ ایک رات پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ میرے شوہر امجد سو رہے تھے، سخت گرمی تھی اور پانی کچن میں موجود فریج میں تھا۔ میں فوری اٹھی اور لاؤں چبور کر کے کچن میں آ گئی۔ پانی پینے کے بعد میں نے کچن میں دیکھا کہ میری بڑی نند فائزہ ایک بڑا سا آئینہ اٹھائے اسٹور روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ تو ہمیں کہا کرتی تھی شیشے میں جو شکل دیکھے گا وہ مر جائے گا، پھر وہ رات کے اس پہر یہ شیشہ اٹھائے اسٹور روم میں کیا کرنے جا رہی تھی؟ میں حیران ہو گئی۔ میں اس کے پیچھے نہیں جا سکی تھی، ایسا پہلی بار ہوا تھا، سو مجھے کوئی تجسس نہ ہوا۔ لیکن پھر یہ معمول بن گیا۔ فائزہ ہر وقت اس بڑے سے شیشے پر کپڑا چڑھائے رکھتی اور کسی کو بھی اس میں اپنی شکل دیکھنے نہ دیتی۔ کہتی جو بھی اس میں اپنی صورت دیکھے گا وہ اسی رات مر جائے گا۔ مگر آدھی رات جب سب سو جاتے تو میری نند وہ شیشہ اسٹور روم میں لے جاتی اور خود فجر سے ذرا پہلے باہر نکلتی، تو نند کا حلیہ بگڑا ہوتا۔ مجھے نند پر شک ہوا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کب سے ایسا کر رہی ہے، شاید وہ کافی عرصے سے ایسا کر رہی تھی، لیکن مجھے معلوم ہی اب ہوا تھا۔ میں نے اس بارے میں کسی کو نہ بتایا تھا، لیکن اب میں نے امجد کو بتانے کا سوچا، کیونکہ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے امجد سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے فائزہ کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔ امجد نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے انہیں سب بتا ڈالا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن امجد نے یقین نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا وہم ہے، وہ شیشہ واقعی خطرناک ہوگا، کیونکہ اس کی بہن جھوٹ نہیں بول سکتی۔ امجد میری بات کی پرواہ کیے بغیر مجھے ڈانٹ کر کام پر چلے گئے۔ امجد اور ان کے خاندان والے ایسی چیزوں پر یقین رکھتے تھے، لیکن مجھے اس بات پر مکمل یقین نہ تھا کہ شیشہ دیکھنے سے کوئی مر سکتا ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں دیکھ کر رہوں گی کہ آخر وہ کرتی کیا ہے۔ میں چھپ کر اس کا پیچھا کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر فائزہ کو مجھ پر شک ہو جاتا تو میں حقیقت کبھی بھی معلوم نہ کر پاتی۔ اس لیے میں نے فائزہ کے سامنے کوئی ایسا ویسا سوال نہ کیا جس سے وہ میرے بارے میں مشکوک ہو جاتی۔ امجد کی موجودگی میں میں یہ کام کبھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ان کی نیند بھی تھی۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ میں ان کی بہن کی جاسوسی کر رہی ہوں تو وہ بہت برا مناتے۔ میں نے ان کو کہیں جانے کی دعا کرنے لگی اور اتفاق سے امجد کو 10 دنوں کے لیے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا۔ امجد کی غیر موجودگی میں یہ کام سر انجام دیا جا سکتا تھا، سو میں نے ان کے جانے پر خوش تھی کہ چلو راز تک تو پہنچ پاؤں گی۔ جلدی میں نے انہیں رخصت کیا۔ میں بہت خوش تھی۔ ان کے جانے کے بعد میری آنکھ لگ گئی اور جب کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ میں فوراً اٹھی اور فائزہ کے کمرے کا رخ کیا، مگر وہ کمرے میں سو رہی تھی اور اس کا حلیہ بھی درست تھا۔ مجھے خود کے سونے پر بہت غصہ آیا۔ میرا یہ دن ضائع ہو چکا تھا۔ کل پیچھا کرنے کا سوچ کر میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن اللہ اللہ کر کے آدھی رات ہوئی۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں کے ساتھ کپڑے سے ڈھانپا ہوا شیشہ اٹھا کر اسٹور روم میں جاتے دیکھا۔ میں چھپ کر دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دھیمی سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، پلیز مت جاؤ چھوڑ کر۔ میری نند رو رہی تھی۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں بھاگ کر کمرے میں آئی اور اپنے شوہر کو میسج کیا کہ فائزہ کے ساتھ اسٹور روم میں کوئی موجود ہے جس سے وہ باتیں کر رہی ہے۔ امجد نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا کہ میں ان کی بہن پر الزام لگا رہی ہوں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ مجھ سے زیادہ انہیں اپنی اس 2 ٹکے کی بہن پر بھروسہ تھا۔
मैं यूं ही राज जाने बिना नहीं रह सकती थी। मैं दोबारा उठी और स्टोर रूम से कान लगाकर खड़ी रही। अभी फायजा के मिलने की आवाज़ आती तो कभी रोने की। दिल में फायजा पर लान तान करती मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे पता लग चुका था कि शीशे का कोई चक्कर ना था, बल्कि ये तो किसी से मिलने का बहाना था। क्या फायजा बुरे किरदार की लड़की थी? मैं यही सोचती रही। साथ ही मैं ये तरीका भी ढूंढ रही थी कि किस तरह अमजद को मेरी बात का यकीन आ जाए। 5 दिन मुसलसल ऐसा ही होता रहा। मैं कान लगाकर उसकी बातें सुनती और फिर अमजद को बताती, पर वो मेरा यकीन ना करते। मेरी दूसरी नंद फिज़ा को कुछ भी मालूम ना था। मैंने ये सब फिज़ा को बताने का सोचा, क्योंकि अगर वो अमजद से बात करती तो वो झट से सच मान लेते। फिज़ा को जब मैंने सारी बात बताई तो उसने मुझे बताया कि 1-2 बार उसने भी ऐसा ही देखा है। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने उसे कहा कि वो अमजद से बात करेगी। उसने ऐसा ही किया। फिज़ा के बताने के बाद अमजद को भी फायजा पर इंतहाई गुस्सा था। वो भी समझ चुके थे फायजा आईने के बारे में झूठ बोलकर हमारी आंखों पर पट्टी बांधा करती थी। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। मैं अब तंग आ चुकी थी। जब मैं फायजा से बात करती तो वो आगे से झूठ बोलती कि वो रात को उठकर कहीं जाती ही नहीं। फिज़ा ने भी जब इससे ये सवाल किया तो उसने साफ इनकार कर दिया और झूठी कस्में खाने लगी। साथ ही उसने आंसू भी बहाए। जब हमने उसे शीशा लाने को कहा तो वो फूट फूट कर रो दी। मैंने आईना ढूंढना चाहा तो वो इसने संदूक में बंद कर रखा था। चाबी वो मुझे दे नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसको वार्निंग दी कि जब अमजद आएंगे तो ही तुम्हारा राज खुलेगा। मेरी बातें सुनकर वो मज़ीद रोने लगी और दोबारा झूठ बोलने लगी। उसके झूठ पर मुझे सख्त गुस्सा आया और मैंने अमजद से फ़ोन पर झूठ कहा कि मैंने फायजा के साथ स्टोर रूम में किसी लड़के को देखा है। ये बात सुनकर अमजद का खून खौल उठा। वो भी इससे बदजन हो चुके थे। फिज़ा ने भी अमजद को मज़ीद बातें बताईं। उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि अब फायजा यहाँ नहीं रहेगी। वो ऐसी गिरी हुई लड़की को यहाँ रखने के हक़ में नहीं थे। उसके बावजूद फायजा बाज ना आई। वो रोज़ रात को स्टोर रूम में जाती और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती। मैंने अमजद को जल्दी घर आने का कहा। मेरे इसरार पर वो अगले दिन घर आए। उन्होंने आते साथ ही फायजा पर सवालात की बारिश कर दी। उन्होंने उसे बदकिरदार भी कहा। मैं खड़ी खुश होती रही क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। जो मुझसे झूठ बोलता है मैं उसे तकलीफ़ में देखकर खुश होती हूँ। एक बार फिर फायजा झूठ बोलने लगी कि वो रात को कहीं नहीं जाती। मैं उसके मुसलसल झूठ बोलने पर हैरान थी। अमजद बहुत गुस्से में थे। कुछ सोचकर मैं उन्हें कमरे में ले आई। मैंने उनसे कहा, मुझे एक मौका दें, मैं खुद बात की तह तक जाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे एक मौका दे दिया और मैं अगली रात का इंतज़ार करने लगी। लेकिन अगली रात फिर मैं पता ना लगा पाई। मैं अंदर जाना चाहती थी मगर अंदर से दरवाज़ा लॉक था। मुझे अंदर से फायजा की आवाज़ें आ रही थी। मैंने फिज़ा और अमजद को उठाया और उनसे कहा, अंदर फायजा के साथ कोई है। उन दोनों ने कान लगाकर सुना तो उन्हें भी आवाज़ें आने लगीं। अमजद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो दरवाज़ा खटखटाने लगे मगर अंदर से कोई आवाज़ ना आई, ना किसी ने दरवाज़ा खोला। मैं अमजद और फिज़ा को फायजा के ख़िलाफ़ मज़ीद भड़काने लगी। वो मुकम्मल तौर पर उससे बदजन हो चुके थे। स्टोर रूम में एक खिड़की भी थी जो बाहर की तरफ खुलती थी। जैसे ही फायजा ने दरवाज़ा खोला उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों से काजल बह चुका था। वो शीशा कपड़े से ढांप कर बाहर निकली। उसके निकलते ही अमजद कमरे में गए तो अंदर कोई नहीं था। उन्होंने यही अंदाज़ा लगाया कि जो भी था वो इस खिड़की से बाहर भाग गया था। फायजा हमसे नज़रें चुरा कर कमरे में आ गई और इस शीशे को संदूक में रख दिया। मैं उसके पीछे जाने ही वाली थी मगर अमजद वहाँ आ गए। उन्होंने इस पर आते ही थप्पड़ों की बारिश कर दी। उन्होंने कहा, तुमने बेवकूफ़ बना रखा था। उन्होंने कहा, तुमने हमें बेवकूफ़ बना रखा था। मेरी बीवी सारा तुम्हारे बारे में सच कहती थी मगर तुम्हारी वजह से मैं इस पर यकीन नहीं करता था। आज तुम्हारा मकरू चेहरा सबके सामने आ चुका है। तुम एक बदकिरदार औरत हो। तुम्हारे पास आज और कल का दिन है। अपना सामान बांधो और यहाँ से किसी यतीम खाने दफ़ा हो जाओ। उसके सामने चीख कर बोल रहे थे। फायजा उनसे माफ़िया मांग रही थी और अपनी सफाइयाँ पेश कर रही थी कि वो बदकिरदार नहीं है। मैं भी अमजद का साथ दे रही थी और उस पर लान तान कर रही थी। अमजद गुस्से में अपने कमरे में चले गए। मैं और फिज़ा उनके पीछे गए और उनको हौसला दिया कि आपने जो किया है ठीक किया है। अमजद ने उसे उसके किए की सज़ा तो दे दी थी मगर मैं अभी भी असलियत जानना चाहती थी। मैं एक दिन मैके जाने का बहाना बनाकर स्टोर रूम में ही छुप गई। मैंने अपनी नंद का इंतज़ार करना शुरू किया और जो ही नंद रात को कमरे में आई तो उसने दरवाज़ा लॉक किया और फ़ौरन हाथ में पकड़े शीशे पर से कपड़ा हटाया।
मेरी जान निकल गई क्योंकि इसमें तो नंद के अपने शौहर और बेटे की तस्वीर थी। वो अब सिसकियों से रोने लगी। मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझे तलाक मत देना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मेरा बेटा मुझे दे दो, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। वो मुसलसल रोते हुए बोल रही थी। उसके हाथ में शीशा नहीं था बल्कि एक बड़ी सी तस्वीर थी जो शीशे की तरह लगती थी। मैं हैरान रह गई, क्या फायजा बदकिरदार नहीं थी? अचानक फायजा ने इस तस्वीर को जोर से जमीन पर पटका जो किरची किरची हो गई। साथ ही वो अपने बाल नोचने लगी और अपना गला दबाने लगी। मैं उसकी इस हरकत से परेशान हो गई। उसने अपना सर दीवार पर मारना शुरू किया। इसी असना में अमजद और फिजा दरवाज़ा खटखटाने लगे। मैं परेशान होकर उठी तो फायजा बेहोश होकर गिर गई थी। मैंने घबरा कर दरवाज़ा खोला और अमजद को सारी सूरत हाल बताई। अमजद परेशान हो चुके थे। अमजद और फिजा रो रहे थे। हम तीनों उसे उठाकर अस्पताल ले गए। अस्पताल में उसका मुआयना होने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि उसे ब्रेन हैमरेज हुआ है। ये सुनकर हम मज़ीद रोने लगे। डॉक्टर्स ने बताया कि ऐसा किसी गहरे सदमे के ज़ेर असर होता है जो कुछ अरसे से फायजा के अंदर दबा हुआ था। उनके जाते ही मेरे रोने में शिद्दत आई। ये सब मेरी वजह से हुआ था। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। शादी के कुछ दिन बाद मेरी नंद को उसके ससुराल से निकाल दिया गया था। उसका एक ही बेटा था। उसके शौहर ने उसे तलाक नहीं दी थी। यही वजह थी कि मैं फायजा से दूर दूर रहती थी और चाहती थी उसका साया मुझ पर ना पड़ जाए, जिस वजह से मेरा और अमजद का घर भी बर्बाद ना हो जाए। वो दुखी थी, इसलिए वो मेरे साथ दोस्ती करना चाहती थी ताकि अपना दुख बांट सके। लेकिन मेरी तरफ से इसे हमेशा बुरा रवैया ही मिला था। मैंने भी उसके साथ अच्छा सलूक ना किया। अगर मैं हर वक्त उसके साथ अच्छा सलूक करती तो आज उसकी ये हालत ना होती। साथ ही मैंने फायजा पर इल्ज़ामात भी लगा दिए और अमजद और फिजा को भी बदगुमान कर दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ था। मैं हाथ उठाकर रब से उसके ठीक होने की दुआ करने लगी। मैं दुआ करने लगी कि एक बार वो ठीक हो जाए तो मैं उससे बहनों वाला सलूक करूँगी। मुझे याद आया कि उसने फायजा का हुलिया बिगड़ा हुआ था, खुद पर तशद्दुद करती थी। उसके शौहर और बेटे की जुदाई ने उसका ये हाल कर दिया था। डॉक्टर्स का कहना था कि फायजा का दिमाग 1 साल से अब नॉर्मल है। जब मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा फायजा सच कहती थी, उसका दिमाग माऊफ हो रहा था, इसलिए फायजा को कुछ याद नहीं रहता था। फायजा एक सच्ची लड़की थी, मगर मेरी नादानी की वजह से वो ये सब भुगत रही थी। अगर मैं उसके साथ ऐसा ना करती तो आज हमारे दरमियान सलामत होती। मैंने सबक सीख लिया था कि रिश्तों को हमारे अच्छे रवैये की कितनी ज़रूरत होती है। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।